Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. धन्यवाद निशित और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। व्यापार जगत, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ निशित कुमार। The benchmark domestic indices end with gains. Sensex climbs 650 points. Nifty closes at 25,682. Major Asian indices close mixed, and India's wholesale inflation showed a moderate rise to 1.81% in January this year. देश के शेयर बाजारों में तेजी। सेंसेक्स 650 अंक उछला, निफ्टी 25,682 पर पहुंचा। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में मिलाजुला रुख और जनवरी में भारत की थोक मुद्रास्फीति दर मामूली बढ़त के साथ 1.81% पर पहुंची। Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और निश्चित शुरू करें हम। आज सबसे पहले देखते हैं कि शेयर बाजार का क्या हाल रहा है। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज शुरू से ही सकारात्मक रुख बना रहा। बैंकिंग शेयरों में पिछले दिनों थोड़ी गिरावट आई थी जिसने आज निवेशकों को आकर्षित किया। सेंसेक्स 650 अंक यानी 0.8% चढ़कर 83,277 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 211 अंक यानी 0.8% बढ़कर 25,682 पर पहुंच गया। सेंसेक्स और निफ्टी में ये बढ़त असल में पिछले दिनों की बिकवाली से कुछ सस्ते हुए शेयरों में निवेशकों की बढ़ी हुई दिलचस्पी की वजह से दर्ज हुई है। आज रियल एस्टेट, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों की मांग बनी रही। The benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty witnessed a strong rally today. The gains reflect robust value buying in banking stocks, which attracted investors after recent price corrections. At the end, Sensex climbed 650 points or 0.8% to close at 83,277, while the Nifty added 211 points or 0.83% to settle at 25,682. The rebound in the Sensex and the Nifty was driven by investors picking up beaten-down stocks with notable buying interest in realty, pharma and FMCG shares. जी, और देखते हैं हम आज क्या हाल रहा है सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के शेयरों का। तो सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई। मुनाफे में रहने वाले शेयरों पर गौर करें। पावर ग्रिड के शेयर 4.4% से अधिक, एचडीएफसी के शेयर 2.2% और एक्सिस बैंक के शेयर 1.9% से अधिक बढ़े। सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाली ये कंपनियां हैं टेक महिंद्रा के शेयर 1.4%, मारुति के शेयर 1.1% और बजाज फाइनेंस के शेयर 1% से ज्यादा गिरे। And among the BSE sectoral indices, 21 of the 23 sectors ended in the positive territory. Among the gainers, power rose over 2.4%, utilities jumped more than 2.1%, and realty advanced over 1.4%.
4%. Among the two laggards, auto dropped 0.8% and consumer discretionary lost more than 0.3%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,510 companies declined, 1,793 advanced and 193 remained unchanged. और देखते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के मुकाबले रुपया थोड़ा गिरकर 90 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ. दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 97.01 पर चल रहा था. हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं दीपशिखा सिकरवार, और आप उनसे अर्थ जगत से जुड़े सवाल पूछने के लिए स्टूडियो में फोन कर सकते हैं. हमारे नंबर है 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. ये दिल्ली के नंबर हैं. इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. और दीपशिखा, आपने देखा बाजार का हाल हमने श्रोताओं को बता दिया है कि आज क्या रहा है और कैसा रहा है. थोड़ी राहत मिली है आज, थोड़ी सी राहत है. और हालांकि अगर देखें हम आंकड़े, दोनों सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 0.8% बढ़कर बंद हुए हैं. और जो पिछले दिनों की जो हमने जो पिछले दिनों करेक्शन देखा था और तत्काल उसका असर बताया जा रहा है, जैसा हमने अपनी स्टोरी में भी पढ़ा है. तो क्या हम मान के चलें कि ये असर भी सिर्फ तात्कालिक है, अभी के लिए है? देखिए, बाजार में जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट आया था वो खास तौर से टेक स्टॉक्स में आया था, क्योंकि जिस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के माहौल बना है, तो टेक्नोलॉजी कंपनीज पर थोड़ा सा और इस सेक्टर पर खास तौर से थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा. लेकिन ओवरऑल जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो काफी मजबूती में है, तो उसका फायदा जो है बाजार को मिलना चाहिए. वो पॉजिटिव सेंटिमेंट बाजार में लाएगा. जियोपॉलिटिकली कुछ टेंशन्स हैं जो मिडिल ईस्ट में दोबारा से हैं. अगर वो बढ़ते हैं और तो हो सकता है बाजार पर असर हो. लेकिन ये ट्रेड डील जो हमारा हो गया है अमेरिका के साथ, और अब फाइनल उसका जो है खांचा खींचा जाएगा, हमारी टीम जा रही है वहां पर जी. तो इसका फायदा जो है बाजार में आपको दिखेगा आने वाले समय में. मतलब अभी फिलहाल हम राहत की सांस ले सकते हैं कुछ समय तक, तो मुझे लगता है जी. Yes, in the meanwhile we are joined in by our first caller, Prakash Chawla from Delhi. Prakash ji, welcome. हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार. नमस्कार जी. मैडम को भी नमस्कार. नमस्कार प्रकाश जी. मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो 15 इयर्स तक होता है उसके बाद 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं ना? जी जी. लेकिन वो 15 इयर्स का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मिल जाता है, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं, वो वही रहता है? देखिए, मैच्योरिटी अमाउंट आप ले सकते हैं, उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं. मोस्टली आमतौर पर ये ट्रेंड रहा है चावला जी कि लोगों ने उसको एक्सटेंड किया है 15 इयर्स और 5 इयर्स के बंच में, 5-5 साल के बंच में उसको एक्सटेंड किया जाता है. तो नॉर्मली ये प्रैक्टिस रहा है कि आफ्टर 15 इयर्स आफ्टर मैच्योरिटी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विद द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ कोर्स. जी. और हम वापस बाजार पर ही आते हैं दीपशिखा की. आप जो बता रही थी कि आज जो है, अभी हम कुछ दिन तो चलो राहत की सांस लेते हैं, और आज सोमवार है तो हम उम्मीद करें कि शायद ये कारोबारी हफ्ता अच्छा रहेगा. हाँ. और पिछले, लेकिन अभी जो हालात हम देख रहे हैं, जो क्रूड की हालत है या जो हम विदेशी मुद्रा डॉलर की हालत देख रहे हैं, रुपए का मूल्य देख रहे हैं, इन सब को देखते हुए अगर हम देखें, आपने अभी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हालत में है, क्योंकि अभी अब हमारे पास WPI के भी आंकड़े हैं, बहुत मामूली बदलाव है उसमें. इन सब को देखते हुए लगता है कि शायद हम अब एक स्टेबल फेज पर आ गए हैं. क्या आपकी क्या राय है? सुबोध जी, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है गोल्डीलॉक्स वाली स्थिति है कि ग्रोथ भी ठीक अच्छी चल रही है, महंगाई दर भी कंट्रोल में है, तो एक स्वीट स्पॉट है भारत.
तो निवेशक जो है भारत की अगर अर्थव्यवस्था की गति देखें और इसका पोटेंशियल देखें ग्रोथ का, जिस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है और सब हो रहा है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले साल, अगले 2 वर्षों में अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में रहेगी। तो वो असर दिखना चाहिए निवेश के ऊपर भी। और अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से देवकांत। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। इनसे संपर्क टूट गया है शायद हमारा, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया तकनीकी खराबी से। Yes, Deepshikha, we were earlier discussing about the markets, but if we look at the tech stocks, Deepshikha, and of course the AI summit is also happening. It's a big one which is happening. It started today. We'll be discussing more about it. In the meanwhile, we are joined in by our next caller, Jitendra from Jaipur. Jitendra. हाँ मैडम, ये बोला था कि रेलवे के शेयर में अभी मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, रेलवे से रिलेटेड? जितेंद्र जी, सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है उस पर काफी हद तक खर्चा किया जा रहा है। रेलवे में भी अगर आप देख रहे हैं, बराबर कैबिनेट जो है परियोजनाएं जो है उनको मंजूरी दे रही है। तो रेलवे का जो क्षेत्र है इसमें ग्रोथ का काफी स्कोप है, और बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्षेत्र हैं वो निवेश की दृष्टि से काफी अच्छे क्षेत्र की तरह आप देख सकते हैं उनको। जी, देवकांत से हमारा संपर्क हो गया है। स्वागत है आपका, सवाल पूछे। जी नमस्कार जी, मेरा प्रश्न था सर कि म्यूचुअल फंड में मैंने निवेश किया हुआ है, जिस पोर्टल के थ्रू मैंने इन्वेस्ट करा था वहां पर प्रेजेंट एनएवी तो दिखाता है, मगर जब इन्वेस्टमेंट एनएवी नहीं दिखाता, और ना ही ये दिखाता है कि मैंने कौन सी डेट को इन्वेस्ट करा था। ये दोनों चीजें कैसे पता चलेंगी? आपको जो है कंपनी से बातचीत करनी पड़ेगी, वहां कस्टमर केयर में अगर आप बात करें तो आपको वहां से वो सारे डिटेल्स दे देंगे। वैसे आप अगर स्टेटमेंट मांग लें अपना, तो स्टेटमेंट में वो सारी चीजें होती है कि आपने कब कितने एनएवी पे आपने इन्वेस्ट किया था, और क्योंकि वो हमेशा फिनटेक पे या वेबसाइट पे वो रेडली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन जब स्टेटमेंट आप ईमेल के जरिए मंगाते हैं तो आपको वो सारी जानकारी मिल जाती है। और म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल ज्यादा डिटेल में पूछने के लिए आप रविवार को हमारे कार्यक्रम में फोन करें तो आपको काफी अच्छी जानकारी भी मिल सकेगी। And in the meanwhile, we are joined in by our next caller, Shankar. Shankar जी, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते शंकर जी, सवाल पूछें अपना। शंकर जी, मैडम, ये गोल्डीलॉक पीरियड, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, ये तो अच्छा है, लेकिन हम लोग 135 नंबर पे है जीडीपी पर कैपिटा इनकम के मामले में। अगर उसको टारगेट करके करे तो शायद हर इंसान को हिंदुस्तान के फायदा होगा। व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट टारगेटिंग दीज पैरामीटर्स टू इम्प्रूव, नॉट द ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और गोल्डीलॉक पीरियड? कैन यू एक्सप्लेन दिस? शंकर जी, देखिए सरकार की तरफ से उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था जब पूरी तौर से बढ़ेगी, पूरा लिफ्ट होगा, तो उसका फायदा हर नागरिक को पहुंचेगा। और कोशिश ये है कि हम पूरी अर्थव्यवस्था को और लास्ट माइल तक उसके बेनिफिट्स को किस हद तक पहुंचा सकते हैं। तो जब हम गोल्डीलॉक्स की बात कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था जो है अभी उस स्थिति में, लेकिन हाँ उसको और पुश की जरूरत है, और इसीलिए अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से विजन दिया गया है विकसित भारत का, तो ये इसीलिए दिया गया है। जी, और देखते हैं कि एशिया के आज प्रमुख शेयर बाजारों में आज क्या हाल रहा है। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिलाजुला रुख देखने को मिला। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.2% से अधिक गिरा, दक्षिण कोरिया का कोस्पे इंडेक्स 0.3% और जापान का निक्केई इंडेक्स 0.2% से अधिक नीचे आ गया। वहीं हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में मामूली बढ़त देखी गई। आज अब तक प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में बढ़त देखी जा रही है। समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 0.3% ऊपर था, लंदन का फुटसी 0.2% और जर्मनी का डैक्स 0.1% से थोड़ा ऊपर चल रहा था। And in some other stories, India's wholesale inflation showed a moderate rise in January 2000
2026. According to the data released by the Ministry of Commerce and Industry, the annual rate of inflation based on the wholesale price index WPI stood at 1.81% in January 2026. The rise in wholesale inflation was mainly driven by higher prices in the manufacture of basic metals, other manufacturing sectors, non-food articles, food articles and textiles. Among the major categories, primary articles recorded a year-on-year increase of 2.21%, while the manufactured products, which form the largest share of the index, rose by 2.86%, indicating a firm factory gate prices. However, the fuel and power segment continued to witness deflation, declining by 4.01%, largely due to the lower prices of electricity and mineral oils, helping to contain overall inflationary pressure. The WPI food index, which includes food articles and food products, registered an increase of 1.41% compared to January last year. On a month-on-month basis, the overall WPI rose by 0.51% in January 2026 over December 2025, reflecting a steady uptick in wholesale prices. The government has stated that these figures are provisional and subject to revision. The next set of WPI data for February 2026 will be released on the 16th of March 2026. जी, और अगले कॉलर हैं दिल्ली से केशव। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार केशव जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जैसे कि जीएसटी जो घटी थी पिछले टूर में, तो उसमें क्या कॉस्मेटिक में भी फर्क पड़ा है, और जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी वगैरह में भी, पर रेट सेम वही है जो पहले जैसे अभी भी मार्केट में मिल पा रहे हैं? कॉस्मेटिक में और साबुन वगैरह जो यूज करते हैं उसमें तो रेट घटने का कुछ हमने देखा है कि घट गए हैं। इसके बारे में जानकारी लेनी। यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हुआ है उसमें और क्या क्या फायदा हमारे को मिलने वाला है? केशव जी, जीएसटी में काफी हद तक जो सामान था कंज्यूमर का, आम आदमी के जो इस्तेमाल का सामान था, उस पे जीएसटी काफी हद तक घटाया गया था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इसलिए अगर आपने देखा होगा कि जो लार्ज टीवी और माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, इन सब पे दाम बहुत घटा था। एयर कंडीशनर्स, इन सब पे भी जो है टैक्स घटा था, और कंपनियों ने जो घटा हुआ टैक्स है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन भी किया था। जो ये रोजमर्रा के सामान होते हैं, साबुन और शैम्पू, इन सब में भी जो है दर में कटौती आपको देखने को मिलेगी। And next caller is Ravi Narayan from Chhattisgarh. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। Good evening. गुड इवनिंग। मैडम से मेरा ये सवाल है कि ये अभी मेरा भी वो सीपीआई और इसी से रिलेटेड है। जो अभी जो गवर्नमेंट ने जो नया बेस ईयर पकड़ के जो है जो डब्ल्यूपीआई और इसके इंटरप्रिटेशन में जो भी चेंजेस लाए हैं, तो इसका जो है हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या बदलाव आने की संभावना, और उसके कारण से जो है लास्ट माइल जब ये है कंज्यूमर है या जो मार्केट में जो खर्चा करने वाला आदमी जो इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को, उसको किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा, और गवर्नमेंट पॉलिसीज में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, मैं जानना चाह रहा था। धन्यवाद दिनेश जी। दिनेश जी, देखिए जो ये नई सीरीज रवि नारायण जी थे, सॉरी रवि नारायण जी, सरकार जो ये नई सीरीज लेकर आई है, उसका बहुत समय से उसमें बदलाव नहीं किया गया था। बहुत सारे पुराने सामान थे जो कि अब एग्जिस्टेंस में, मतलब वो इस्तेमाल में नहीं आते, तो उनका जो है प्राइसेस, उसको तो मेजर करके कोई फायदा नहीं था। तो बहुत सारे नए सामान उसमें ऐड किए गए हैं। उसके अलावा जो है बहुत सारे नए मार्केट्स ऐड किए गए हैं। जैसे ई कॉमर्स तब नहीं होता था, अब बहुत एक्टिव हो गया ई कॉमर्स। तो जो बाजार हैं उनको, उसके अलावा भी ई कॉमर्स साइट्स पे भी प्राइसेस को मॉनिटर किया जा रहा है। उसके अलावा बेस ईयर चेंज किया जा रहा है। तो उम्मीद ये है कि इससे जो हमारे नीति बनाने वाले लोग हैं उनको एक बहुत करेक्ट पिक्चर मिलेगी जो देश में इन्फ्लेशन है। उसके अलावा जो है वेट्स में चेंजेस किए गए हैं। ये अगर खाद्य का जो इन्फ्लेशन है वो देखा जाता था, उसका वेट बहुत ज्यादा था पुराने सीरीज में, जिसके कारण वो वॉलेटिलिटी बहुत रहती थी।
तो वो उसमें कम हो गई है, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका फोकस जो है वो उसका असर खाद्य पदार्थों पे उतना नहीं होता है। तो ये जो नई सीरीज आई है इसमें नीति जो है बहुत इफेक्टिवली बनाने के लिए बन पाएगी, इसको देखते हुए। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दिनेश। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर जी, ऐसा है 30 साल पहले हमने शेयर सप्लाई किए थे, तो वो उसका खाली फोलियो नंबर है, ना हमारे पास फिजिकल सर्टिफिकेट है ना कुछ और है, और हमने सुना कोई उनकी लास्ट डेट वगैरह भी है, वो कब है ताकि हम शेयर ले सकें अपने फिजिकल। दिनेश जी, देखिए सरकार की तरफ से एक जो है इनिशिएटिव जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें ये पुराने जो शेयर्स हैं जो अता पता नहीं है जिनके बारे में, आप उसमें जाकर के उसमें लोगों की मदद की जा रही है कि किस तरह से वो कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी के डिटेल्स हैं और कोई उससे जुड़ा हुआ कागज है तो आप कोशिश कर सकते हैं कंपनी जिस कंपनी के शेयर हैं उसके कंपनी सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख करके या उस कंपनी का जो भी रजिस्ट्रार रहा होगा उसको लिख करके, तो हो सकता है आपको वो शेयर्स जो है उसके सर्टिफिकेट्स आपको दोबारा मिल जाएं, आप उनसे पैसे बना सकते हैं। क्योंकि इनके पास फोलियो नंबर है, जैसा फोलियो नंबर है जी, फोलियो नंबर से वो निकलवा सकते हैं जी, काफी मदद हो सकती है। राइट। एंड दीपशिखा, India's exports numbers have also come today, and they have maintained a steady growth momentum in the current financial year, with the cumulative outbound shipments rising 6.15% to $720.76 billion during April to January 2025-26, according to data released today by the Department of Commerce under the Ministry of Commerce and Industry. The increase was supported by resilient services exports and moderate expansion in the merchandise trade, even as imports continued to outpace export growth, widening the trade deficit. Now, of course, the trade deficit, as the data shows, has widened a bit, Deepshikha, but at the same time, if we look at the exports, 6.15% rise, especially, with the trying times that we are going through, especially over the past maybe 12-18 months or so, this is so very encouraging and kind of a resilient data. What do you have to say about this? क्योंकि हमने काफी इसी दौरान हमने तमाम तरह की धमकियां झेली हैं। बिल्कुल नहीं, तो एक जो मैं कहना चाहूंगी, मैं अगर आप अप्रैल जनवरी का क्यूमुलेटिव डेटा लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही स्टेडी ग्रोथ है, लेकिन अगर आप जनवरी का लेते हैं तो जनवरी में बहुत ही मॉडेस्ट ग्रोथ है, और इसकी वजह जो है हम सब जानते हैं कि जिस तरह की दिक्कत हमारे निर्यात क्षेत्र के साथ थी, बहुत डिफिकल्टी में था, वो दिक्कत अब काफी हद तक जो है वो उसका रेजोल्यूशन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो रोबस्ट ग्रोथ हमें अप्रैल जनवरी में दिखाई दे रही है, ये आगे जो है इसमें और मजबूती आएगी। जी, और पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं एआई समिट का, और उसकी खबर भी बता दें अपने श्रोताओं को। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती रचनाशील अर्थव्यवस्था देश के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और कुशल लोगों से संचालित हो रही है। आज नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पहले दिन श्री वैष्णव ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 90% हिस्से में 5G का कवरेज है, जिससे नागरिक डिजिटल रूप से कुशल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कार्यबल को तैयार करने के लिए कौशल विकास और नई प्रतिभाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आज से नई दिल्ली में शुरू हो चुका है और ये 20 फरवरी तक चलेगा। So Deepshikha, this AI Impact Summit, which started today and will continue until the 20th of this month, this is really big. How do you see this impacting the Indian tech landscape? See, this AI summit which India is hosting, this is a third in the series. The first one was held in UK, then in France. This is the first one in the global south, right?
Yes, absolutely. Yeah. So this definitely, brings India at the center stage of the discussions in AI. And we've seen the kind of developments that we are hearing in terms of AI, and India has a very robust tech sector. To definitely hosting this summit has a lot of relevance, and also India represents the voice of Global South, like you mentioned. So you can air those views of Global South there, whether there needs to be regulation, whether there needs to be access. Because when we talk of AI, I think the biggest concern now is whether it would create a further divide between the haves and the have-nots, and especially the select countries which have the technology. Would they want to share it with the countries which they're not? So how to prevent that from happening? ठीक है, ये तो दीपशिखा है कि हर नई चीज को लेकर आशंकाएं भी रहती हैं और संभावनाएं भी अनंत है। आईटी को लेकर भी हुआ था, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एआई का भी हम भरपूर फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारत में काफी काम हो रहा है इस दिशा में, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि हम भी जो टेक्नोलॉजी का ये नया फ्रंटियर है, इसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। Right, and moving on to crude now, the global crude oil prices fell today. The Brent crude was trading around 0.12% down at $66 and 68 cents per barrel, and the WTI crude was trading 0.04% down at $62 and 80 cents per barrel when reports last came in. And on to the bullion market now. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.5% down at 1,55,190 rupees per 10 grams. Silver was trading 1.7% down at 2,40,860 rupees per kilogram a short while ago. जी, और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल अनुबंध वाले 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.3% नीचे 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा था, और मार्च अनुबंध वाली चांदी 1.47% नीचे 2,40,768 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। दीपशिखा, ये सोने और चांदी की कहानी हम हमेशा जारी रखते हैं कि अब, लेकिन आज अब जैसा दिख रहा है हमें कि दोनों में थोड़ी गिरावट है, और चांदी का अपना महत्व है जैसा हम जानते हैं, लेकिन सोने की जो गिरावट है, मतलब सब कुछ क्या, अगर देखें हम जियोपॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी बनती है तो कुछ और इसमें गिरावट आ सकती है। सुबोध जी, हमने देखा कि चांदी में खास तौर से बहुत स्पेकुलेशन था। हालांकि कहा जा रहा था इंडस्ट्रियल डिमांड है उसकी वजह से बढ़ रही, लेकिन बहुत हद तक जो था स्पेकुलेशन था। सोना डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं उसको, तो हो सकता है कि प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आए, लेकिन मजबूती हमेशा उम्मीद आशा की जा रही है कि शायद बनी रहेगी। जी, आज वक्त इतना ही है। दीपशिखा, कार्यक्रम में आने, खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुबोध। Thank you so very much, Deepshikha, for joining in. And before we close, here is a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices end with gains. Sensex climbs 650 points. Nifty closes at 25,682. Major Asian indices closed mixed, and India's wholesale inflation show a moderate rise to 1.81% in January this year. And that is all in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।